Welcome to the CSR initiative of Jagsonpal Pharma, My Sakhi. To learn more about the initiative My Sakhi, you can scan the QR code on the screen to reach the website mysakhi.in. Continuing with the topic discussed in last My Sakhi webinar, today we discuss about the required tests during perimenopause and menopause so that we can stay healthy in these golden years. The session today is courtesy MEMUP, the latest in menopausal hormone therapy by Nari Division of Jagsonpal. We welcome and thank all those who have joined us as participants today. This web series, Menopause Dialogues, is a part of Jagsonpal's ongoing CSR initiatives to raise awareness and promote better management of women's health. Today, we learn about the essential health screenings and key checkups by menopause expert Dr. Ragini Agarwal. She will brief us about the required tests. As a New Year gesture, we shall be sending all participants of this webinar today an Amazon bestseller book on perimenopause and beyond, Finding Your Balance. So do share your phone number and address in the chat box or WhatsApp to this number given here 98102 69907 to help us deliver your free copy to your address. Wishing everyone a very happy new year ahead. We all know our menopause expert Dr. Ragini Agarwal. She is the incoming Secretary General of Indian Menopause Society and she is passionately involved in spreading public awareness on women's health. She is Director AA Dharma Science Complete Clinic for Women's Health in Gurugram, Haryana. As an expert in aesthetic, functional, and urogyne surgery, she specializes in female sexual health. Welcome, ma'am, and over to you to begin the session. Dr. Ragini, ma'am. नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत है आज के इस एपिसोड में, जिसके साथ साथ हम एक नए वर्ष में एंट्री करने जा रहे हैं। आप कितने एक्साइटेड हैं? यू आर गोइंग टू हैव अ न्यू ईयर 2025. सो हैव you ever thought of when you are going to attain a menopause, you are entering in a new life? Why you are depressed? Why you are irritated? Why you are thinking that something is losing? No, this is a time when you should be excited, you should be happy, because you are on the second journey of your life where your own life matters. How come? Is it matter previously also? Not so much. You are involved in family, in your jobs, and you have no time for yourself. Suddenly one day, when you stood in front of the mirror, and instead of seeing a 20-year girl, you are seeing a mature woman of 50 years. Now, take your life in your hand. And when you take your life in your hand, what matter most? The matter which really required is your health. And health, when we talk about the health, with the definition of the WHO, आपकी फिजिकल हेल्थ यानी शारीरिक हेल्थ, आपकी मानसिक हेल्थ यानी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, ये सारे के सारे मैटर करते हैं. तो स्टेइंग हेल्दी एट मिड लाइफ इज अ mixture of all these type of aspect of your health, and for that the most important mantra is that you should have a me time. Think about yourself. जैसे कि आप बच्चे के वैक्सीनेशन को कभी मिस नहीं करते हैं, दौड़े दौड़े चले जाते हैं, छुट्टियां लेते हैं, वैसे ही इस समय में अपने हेल्थ के लिए आपको समय देना है. और यही नहीं, इस समय में अपने हेल्थ का ध्यान रखना है. ठीक है,
और हेल्थ की बात बहुत जरूरी है, लेकिन आज हम फोकस करने जा रहे हैं फिजिकल हेल्थ में। क्योंकि अगर आपका शरीर चलेगा, आप हेल्दी होंगे, तभी आप आगे की तरफ कुछ कर सकेंगे। जैसा हमने पिछले कई एपिसोड्स में आपको बताया कि जब आपका मीनोपॉज ट्रांजिशन होता है और आप मीनोपॉज की तरफ बढ़ते हैं, आपकी बॉडी के दो प्राइमरी हार्मोन्स, जिनको हम ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, वो गायब हो जाते हैं। और उनके गायब होने के साथ साथ आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि लेडी का जो शरीर है, उसके हर अंग में, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो आईज हो, चाहे उसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हो, चाहे वो उसका यूट्रस है या ब्रेस्ट है, सब जगह ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर होते हैं और वो ईस्ट्रोजन के लिए भूखे बैठे रहते हैं। अब आपने उनका खाना तो छीन लिया, जब खाना छीन गया तो वो क्या करेंगे? तो इसलिए आपकी ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि आप लड़ ना सके, जिससे आप जीत ना सके। ये आपके अंदर ये होना चाहिए कि आई हैव टू लिव माई लाइफ एंड आई वॉन्ट टू लिव दिस लाइफ with full vigor, and I am going to embrace this golden era wonderfully. So, हमने आपको लास्ट टाइम स्टेइंग हेल्दी पार्ट 1 में हमारे साथ हमारे मित्र चारों तरफ इंडिया से जुड़े थे, उनके साथ हम लोगों ने एक आउटलाइन आपको डिटेल में समझाई। आज उस आउटलाइन में से एक छोटी सी चीज हम पकड़ करके और डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आप में से जिसको भी उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछना है पूछिए। तो स्टेइंग हेल्दी is a term which we should remember all the time when we are talking about the midlife. Midlife हर किसी की जिंदगी का एक शाश्वत सत्व है जो कि आना है, और उसका कल्मिनेशन यानी उसका एंड मीनोपॉज में होना ही होना है। तो ये पहली चीज आप अपने दिमाग में रखिए, मीनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, परंतु वो होती हुई अवस्था को ध्यान रखते हुए आपको अपने बदन में, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं। और इस पर्टिकुलर जो आप देख रहे हैं स्लाइड अपने उस पे, ये इसका क्रक्स है। खाओ बट हेल्दी, दौड़ो तो रहोगे हेल्दी। एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन, ये उसके दो ऐसे सिक्के के पहलू हैं जो कि आपकी इस जीवन संध्या को बहुत ही खुशनुमा बना सकते हैं। कोई भी कार्य करने के पहले भगवान की ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है, और उसी के कारण, उसी की कृपा से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक सेंटेंस जो कि WHO ने कहा है, हमने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था कि हेल्दी ईजिंग, जब आप उम्र आपकी बढ़ रही है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि आप जहां तक हो सके असहाय ना हो, अपाहिज जिंदगी ना जिए। डिजीजेस से आप फ्री तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल कर सकते हैं एज पॉसिबल एज एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। और एक ये प्लेट है जिसको देख करके आपको ये समझना है मुझे क्या खाना है और मुझे क्या नहीं खाना है। अब हमारा दिल तो सवेरे सवेरे बर्गर पिज्जा यही खाते खाते बड़े होते होते हमें मालूम ही नहीं पड़ता कब हम 45-50 के हो गए, और इन चीजों को अपनी जिंदगी से हमें कम करना है। और एक बहुत ही आवश्यक चीज है जिसको हम प्रोटीन कहते हैं, और हम भूल जाते हैं अपने खाने में प्रोटीन का एडिशन करना। तो न्यूट्रिशन का जो पहलू है ना, जो 4 पिलर्स हैं आपके एक हेल्दी मीनोपॉज के, और जिनके कारण अगर आप उसे बैलेंस करेंगे तभी आपके वो टेस्ट भी उस नॉर्मल कैटेगरी में आएंगे, जिसके कारण आपका फिजिकल हेल्थ बहुत ठीक रहेगा और आप अपनी जिंदगी को एक अच्छी जिंदगी की तरह जी सकते हैं। तो नेचुरली उस स्टेट को पाने के लिए जो एक पहली सीढ़ी है वो है आपका न्यूट्रिशन। अगर आपने सही किस्म का न्यूट्रिशन लिया है
तभी आप अपनी फिजिकल हेल्थ को सही रखने में समर्थ हो पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको केमिकल्स और बहुत शुगर, बहुत ज़्यादा, जैसे ये आपका शुगर के नाम पे अगर मैं बोलूँ, साथ में मैदा की बनी हुई चीज़ें जो आजकल जंक फूड के नाम पर बहुत पॉपुलर हैं। इवन जब हम इसकी बात करते हैं तो कोई भी हमारी शादी पार्टियों में यूज़ होने वाले नान की बात नहीं करता है। इन चीज़ों को हमें कम करके फ्रूट्स और वेजिटेबल बढ़ाने हैं। ऑयल लीजिए, घी भी लीजिए, मैं बिल्कुल भी घी के विरुद्ध नहीं हूँ, घी खाना चाहिए। खास करके जो हम लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए एनिमल प्रोटीन, एनिमल फैट के नाम पर हमारे पास सिर्फ एक चीज़ है, वो है घी। तो घी खाइए, लेकिन एक मॉडरेट अमाउंट में, आधा चम्मच, एक चम्मच, ये नहीं कि हमने जो है दिन भर में 10-12 चम्मच और घी में तले हुए हलवे भी खा लिए, लड्डू भी खा लिए। साथ में खाने में वैरायटी के हर्ब्स स्पाइसेस आप डाल सकते हैं, वो खाने को अच्छा भी बनाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी के काम भी करते हैं। यही नहीं, सॉल्ट अगर आप हर्ब्स डालते हैं ना कहीं सॉल्ट थोड़ा सा कम करते हैं। सॉल्ट के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आपका डेली रिक्वायरमेंट सिर्फ 3 ग्राम सॉल्ट का है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सॉल्ट हर चीज़ में डाल के नहीं खाना चाहिए। और पानी जरूर पीजिए, कम पानी पीने से भी बहुत सी बीमारियां आती हैं। सो प्रोटीन, ओल्डर पीपल यूजुअली हमने देखा है कि वो प्रोटीन नहीं खा पाते हैं। तो प्रोटीन के लिए हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं उनको, अगर वो ना खा पाए। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा अपने इस ढंग से कि पतली दाल बना करके उसको मैश करके और उनको दे दें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। खाना, अगर आप अर्ली मिड लाइफ में हैं और आप अपने आप में मस्त हैं तो आप खा लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। वो इस उम्र में बहुत ही उदास हो जाते हैं और पूरे समय एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं जिसमें डिप्रेशन बढ़ता जाता है। कभी वो अपना इमोशनली बच्चों पे इतने डिपेंडेंट होते हैं कि बच्चे तो बड़े हो गए, अब हमें पूछते ही नहीं है तो हम जी के क्या करेंगे। अरे भाई, जी के क्यों नहीं करोगे, अब अपने लिए जी लो। आपने अपनी जिम्मेवारियां पूरी की, बच्चों को पाला पढ़ाया, बढ़िया बनाया, ये थोड़ा ना है कि आप उनसे चिपक करके रह जाओगे। दूसरा जो है, परिवार में लोग बिखर जाते हैं, नौकरियां चली जाती हैं, अब आप रिटायर हो गए तो, लेकिन तब भी आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ कोई ऐसा मौका रखिए जब आप शेयर मील्स वगैरह शेयर करें। और दूसरी चीज, जो साथ में हमारे हेल्पर्स हैं या घर में जो यंग लोग हैं, उनको ये देखना चाहिए कि एल्डरलीज को जो खाना है वो इस किस्म का हो, क्योंकि जिससे वो खा सके। तो यहाँ पर अब हम इस लाइन से फिजिकल हेल्थ की किस पार्ट पे आते हैं? हम फिजिकल हेल्थ मेंटेनेंस पे आते हैं, गुड डेंटल हेल्थ पे। हम सब कुछ डिस्कस कर जाते हैं, लेकिन सच मायने में जब तक कोई तकलीफ नहीं होती है, हम क्या डेंटिस्ट के पास जाते हैं? कभी हमने वेल डेंटल क्लिनिक अटेंड किया है? कभी हमने जाके दिखाया है कि भाई डॉक्टर साहब देखो हमारे दांत अभी ठीक हैं या इनमें कोई तकलीफ हो रही है, हमें कुछ करना है? तो डेंटल हाइजीन एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि डेंटल हाइजीन ना ठीक होने से खाना खाने में तो जो दिक्कत आएगी, वहां पे पड़े हुए बैक्टीरिया खाने में मिल करके आपके बदन में भी एंट्री करेंगे। और चूंकि इम्यूनिटी इस लेवल पे कम होती है तो आपको अपने फूड की सेफ्टी रखनी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, दूसरा पहलू या दूसरा स्तंभ हम कह सकते हैं वो है आपका एक्सरसाइज, जिसमें कि कोई जरूरी नहीं है कि आज की तारीख में आप एथलीट बन लें और मैराथन के लिए चल दें और आप जो हैं बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि हम तो ओलंपिक में जीत के आएंगे। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। वॉक करिए, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करिए, थोड़ा योगा करिए और थोड़े से वेट्स के साथ आप अपनी एक्सरसाइज करिए। बेसिकली 150 से 300 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइज आपके लिए जरूरी है। तो जो अभी तक हमने आपको बात की, तो टेक अवे का मतलब ये है कि जोमेटो के टेक अवे को मत सोचिएगा कि जोमेटो का टेक अवे आ गया है। ये आपके एक्सरसाइज के मैसेज का टेक अवे है कि आप एक कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज जिसमें एरोबिक भी है, वॉकिंग भी है, रनिंग भी है, बाइकिंग भी है, ये बनाएं। और हाई इंटेंसिटी एरोबिक सेशन,
इसको करने के पहले 4 बार सोचें, पहले डॉक्टर को दिखाएं आपकी हड्डियां इसके लायक भी हैं कि नहीं आई हैं। लेकिन मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज आप ग्रेजुअली ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन थेरा बैंड वगैरह की मदद से घर पे भी किया जा सकता है। और एक बार हफ्ते में 45 मिनट्स की एक्सरसाइज जरूर कीजिए, उससे आपका स्टेमिना बनेगा। तो यही नहीं, इन एक्सरसाइज करने से आपका न्यूट्रिशन भी बेटर होता है, क्योंकि आपको भूख लग जाती है, भूख आपकी खुल जाती है। और ये जो है आपके दूसरे किस्म के हेल्थ को, जो कि स्टेइंग हेल्दी में आपको मदद करता है, मेंटल हेल्थ, उसके लिए भी बहुत अच्छा है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, खाना बैलेंस खाते हैं, मैदा केमिकल वाला खाना अवॉइड करते हैं, तो आपके एंजाइटी और मूड स्विंग्स भी कम होते हैं। सो तो हमने जो आपको अभी एक चीज बताई कि हम आपको क्या क्या स्क्रीनिंग आपके लिए जरूरी है 40 to 64 ईयर्स के एज में, जिसको हम मिड लाइफ कहते हैं। तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका जो जनरल हेल्थ चेकअप होता है, ये वो समय है जब आपका इसेंशियल हाइपरटेंशन बढ़ सकता है। तो एक तो आपके फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, आपको ऊपर से नीचे अच्छी तरह से देखा जाता है, आपका वजन क्या है, आपकी हाइट क्या है, उससे आपका बीएमआई निकाला जाता है, आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस देखा जाता है। और वेस्ट सरकमफ्रेंस हिप रेशियो जो होता है, ये आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बताने के लिए कि आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ग्रस्त हैं या नहीं। ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको एक बार में हम नहीं कहेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर है। कुछ दिन की आपको हफ्ते भर की रीडिंग लेने के लिए कहा जाएगा, सवेरे और शाम की। और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ये ना सोचिए इस उम्र में कि आपने एक्सरसाइज कर लेंगे, तेल बंद कर देंगे और नमक बंद कर देंगे तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर कई बार सडन एक्सीडेंट्स भी करता है, ब्रेन एक्सीडेंट्स करता है और हार्ट की भी प्रॉब्लम बढ़ाता है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग बहुत एक उम्र के बाद कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज ब्रेस्ट कैंसर औरतों में होने वाला नंबर 1 कैंसर है, जो कि सर्वाइकल कैंसर को पीछे करके आगे आ चुका है। इन कैंसर्स की स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। तो अब आप हमसे पूछिएगा कि ये स्क्रीनिंग क्या होती है। स्क्रीनिंग का मतलब ये कोई जब आपको डिजीज हो जाएगी तब तो उस सिम्टम के साथ आप डॉक्टर के पास जाएंगे ही, लेकिन स्क्रीनिंग का मतलब होता है आपको भी कोई सिम्टम नहीं है, फिर भी आपकी जांच करी जा रही है, जिससे कि बहुत ही अर्ली स्टेज में आपको होने वाली बीमारियों को पकड़ा जा सके। और जिस भी बीमारी को हम अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं तो उसका इलाज ज्यादा बेहतर संभव होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। और आप में से बहुत लोगों को बहुत आश्चर्य होगा जिन्होंने आज तक ये, हो सकता है कि ये ना सुना हो, कि कोलोरेक्टल स्क्रीनिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके रूटीन जांच की। लंग कैंसर स्क्रीनिंग, यस, स्मोकिंग बढ़ रही है और यही नहीं, आज के समय में जो इतना प्रदूषण है, पोल्यूशन है, वो भी एक तरह का स्मोक है, जो आप दिन भर एक बचपन से लेकर के और पीते ही चले आ रहे हैं, पीते ही चले आ रहे हैं और पीते ही चले आ रहे हैं। इन्फेक्शियस डिजीज स्क्रीनिंग, बहुत किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं। एक दिन मालूम पड़ता है आप चक्कर खा के गिर गए, अरे क्यों चक्कर खा के गिरे, एपिलेप्सी का दौरा भी पड़ गया आपको। और जब आप गए तो मालूम पड़ा कि आपके दिमाग में छोटी छोटे सिस्ट हैं। और वो सिस्ट कहाँ से आए हैं, उनको हम न्यूरोसिस्टल सर्कोसिस कहते हैं, जो कि एक इन्फेक्शन है, एक किस्म का वर्म है जो कि आपकी बॉडी में आता है। ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जो कि इस उम्र में भी आपको हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। डायबिटीज, शायद ये एक ऐसी चीज है जिससे हर इंसान परिचित है। और हम इंडियंस बाई आवर एथनिसिटी, यानी बीइंग इंडियन, वी आर मोर प्रोन टू डेवलप द डायबिटीज,
क्योंकि हमारा खाना पीना रहन सहन ऐसा ही कई जनरेशन से चलता चला आ रहा है कि हमारे बॉडी में जो डायबिटीज की जीन्स हैं वो काफी ही डोमिनेंट हो चुकी हैं। यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगी, हमारी बॉडी में हर किस्म की बीमारी की जीन्स होती है, बस मौका ये है कि कौन सी बढ़ गई और कौन सी छोटी हो गई। और जनरेशन टू जनरेशन जो जीन्स दबाव डालती चली जाती है वो बहुत उभरी भी आती है, उनमें से डायबिटीज की जीन्स है। हम डायबिटीज की स्क्रीनिंग की बात आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डायबिटीज होने के पहले एक बहुत बड़ा पीरियड है जिसमें आप प्री डायबिटिक होते हो, और ये जो प्री डायबिटिक होना है इसकी भी हम जांच पड़ताल करके और उसको उस समय अगर आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो आपका डायबिटीज होने का जो उम्र है वो बढ़ सकती है, यानी 45-50 की बजाय 60-70-80 में भी जा सकती है। साथ में उसी किस्म से डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो जाते हैं। जितनी कम उम्र में आपको डायबिटीज होगी उतनी ही जल्दी आपके और कॉम्प्लिकेशन जैसे रेटिना के चेंजेस, किडनी के चेंजेस, या बदन में न्यूरोपैथी, आपने डायबिटिक फुट का नाम सुना होगा, पैर कटने की नौबत आ जाती है, वैस्कुलोपैथी, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। डायबिटीज आपके बदन के हर अंग पे असर करती है, तो डायबिटीज की स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग, ये भी एक लिपिड आपके बदन में किस किस्म का है, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिश्ता होता है आपके हार्ट अटैक से। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ है तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि वेसल्स के अंदर प्लाक बनने की संभावना बढ़ जाती है, हार्ट डिजीज होने की और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस स्क्रीनिंग, अब ये क्या होती है? तो देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। खास करके महिलाओं के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जेंट्स को ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होती है, बट उनको बहुत ही लेट स्टेज में होती है, बहुत ही जेरियाट्रिक उम्र में होती है। अगर जल्दी होती है तो उनको कोई ना कोई बीमारी होती है। परंतु औरतों के साथ क्या है, ईस्ट्रोजन हार्मोन के खत्म हो जाने के कारण या कम होने के कारण उनके बोन्स में मिनरल्स का जमना बंद हो जाता है, तो बोन्स खोखली हो जाती हैं जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और ये ऑस्टियोपोरोसिस उम्र के साथ बढ़ती ही चली जाती है, कम होने की बजाय। तो अगर हम इसकी स्क्रीनिंग समय पे कर लेते हैं, उसके स्टेज को देख लेते हैं कि अभी उसमें सिर्फ कमी शुरू हुई है जिसको हम ऑस्टियोपिनिया कह रहे हैं, या फिर वो माइल्ड या सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, तो इसमें क्या होता है, साइलेंट फ्रैक्चर होते हैं। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, चलते चलते आपके हाथ पैर की हड्डी टूट जाती है। यही नहीं, आपने देखा होगा बहुत सारी औरतें उम्र के साथ झुकती चली जाती हैं, पहले उनकी हाइट कम होती है, फिर धीरे धीरे उनके कंधे निकलने शुरू होते हैं, वो आगे की तरफ झुक जाती हैं। तो बेसिकली स्पाइन के कमजोर हो जाने के कारण उनके बदन में ये तकलीफ होती है, और ये भी ऑस्टियोपोरोसिस का एक हिस्सा है। बहुत सारी लेडीज जो होती हैं उनका फ्रैक्चर नेक फीमर हो जाता है, जरा सा ही चोट लगी और फ्रैक्चर नेक फीमर हो गया, लीजिए जी अब ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन नहीं हुआ तो बिस्तर पे पड़ गए, फिर तो भगवान ही मालिक हो गया उनका। अब एक चीज रहती है जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, सब सोचते हैं जी स्किन तो सिर्फ ब्यूटी का काम है, हमने चेहरा चमका लिया हो गया हमारा काम। ऐसा नहीं है, स्किन आपकी बीमारी की है, स्किन की जांच बहुत जरूरी होती है। बड़ी उम्र में स्किन में कई किस्म की बीमारियां भी देखी जा सकती हैं जो कि आपकी अंदरूनी बीमारियों को आईना है। स्किन आपके बदन का सबसे बड़ा ऑर्गन है और जो आपको दिख रहा है, और इसके अंदर डेवलप होने वाली डिजीजेस आपके अंदरूनी बीमारियों को दिखा रही होती हैं। तो चलिए हम, तो हुआ क्या, हमारा ये चल क्यों नहीं रहा है? हाँ, तो कैंसर पे हम सबसे पहले बात करेंगे। नंबर 1 ब्रेस्ट कैंसर, बात करेंगे ओवरी के कैंसर की, एंडोमेट्रियम बच्चेदानी की झिल्ली को कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर के बारे में तो इतनी बात हो चुकी है, इतनी बात हो चुकी है कि अब तो हर आदमी इसके लिए एक्सपर्ट बन चुका है। यही नहीं, जो वल्वल कैंसर है यानी कि जो आपका एक एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, उसमें ये उम्र है जिसमें
कैंसर डेवलप होता है। ये यंग लोगों को नहीं होता है आमतौर पर। देन लंग कैंसर मैंने आपको बताया और कोलोरेक्टल कैंसर आपको बताया। तो आप अगर 40 से 49 साल के हैं तो ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड के साथ साथ, जो कि आज के समय में 30 साल की उम्र से शुरू हो जाना चाहिए, ईयरली आप 40 से 49 साल में एक मैमोग्राफ यानी कि एक्सरे ब्रेस्ट का जरूर कराएं, जो कि 4 से 5 साल में, हालांकि गाइडलाइंस 1 से 2 साल कहती हैं, लेकिन चूंकि उसमें एक्सरे एक्सपोजर बहुत हो रहा है और आप हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं है और आपके अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, तो आप उसको पोस्टपोन भी कर सकते हैं 4 से 5 साल में। और खास करके जो लेडीज जिनकी बहन को या माँ को या मौसी को कैंसर हुआ है, उनको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और वो समय से जरूर ही अपनी जांच कराएं। इवन उन फैमिलीज में हम यंग एज से ही कहते हैं कि एटलीस्ट ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। और यही नहीं, एक बहुत ही अच्छी सी चीज है जिसे हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं, जो कि 20 ईयर से शुरू हो सकती है, जिसको कि आप डॉक्टर से सीख के अपने आप हर बार मेंसेस के बाद कर सकते हैं। और जब मेंसेस चले गए हैं तो कोई भी एक डे फिक्स कर लीजिए। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन डॉक्टर करता है, जो कि 3 साल पर होता है, और 40 साल के बाद आपको हर साल कराना चाहिए जब आप डॉक्टर के पास एनुअल चेकअप के लिए जाते हो। मैमोग्राफी की स्टार्टिंग एज मैंने आपको बताया 40 ईयर्स है। ब्रेस्ट डेंस होते हैं, इसलिए 40 साल के पहले मैमोग्राफी कराने का कोई मतलब नहीं। अब हम आते हैं कैंसर सर्विक्स पे। कैंसर सर्विक्स एक ऐसा सर्विक्स है जिसको पूरी तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि जो इसकी जांच है वो, अगर हम उसके पानी की जांच कराते हैं, कैंसर सर्विक्स बनने में 20 साल लगता है, तो एबनॉर्मल होती हुई सेल्स से हम उसके पता कर सकते हैं कि आप किस रास्ते पे जा रहे हो। हमारे पास आजकल वैक्सीन है, हालांकि बड़ी बड़ी बातें बन रही हैं, जी वैक्सीन से ये हो जाता है, वैक्सीन से वो हो जाता है, लेकिन जो हमारे पास वैक्सीन पिछले 15-18 साल से वो कंप्लीट ट्रायल के बाद आई है और कोई भी वैसे साइड इफेक्ट नहीं देखे गए। हाँ, कैंसर सर्विक्स एक साइड इफेक्ट है, कैंसर सर्विक्स का रेट बहुत कम कर दिया है उसने। तो ये जो प्राइमरी वैक्सीनेशन है, अगर हम यंग लड़कियों को कराते हैं 15 साल की उम्र से कम, तो हमें यार, हालांकि लड़कों को लिए भी ये कराया जा सकता है, तो 2 इंजेक्शन, और 16 से लेकर के 46 तक 3 इंजेक्शन चाहिए होते हैं। लेकिन अगर हम वैक्सीनेशन की बात ना करें बड़ी बड़ी लेडीज में, तो बेसिकली उनके यूट्रस का के मुंह का पानी, जो कि बड़े आराम से हमारी ओपीडी में देखा जा सकता है, उसमें से पानी लेकर के हम एक को टेस्टिंग करते हैं, यानी सेल्स को भी पढ़ते हैं। साथ में ये अकेला कैंसर है जो कि एक वायरस के कारण होता है 99%, जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, उसको भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कई किस्म का होता है, जिसमें से 16 और 19 का जो जीनोटाइप है वो कैंसर की तरफ ज्यादा होता है। हालांकि इससे पेनिस के कैंसर, एनस के कैंसर, मुंह के कैंसर, वॉल्ट्स, ये सब हो सकते हैं। और जिन आदमियों में ये होता है वो कैरियर का भी काम कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है ये वैक्सीनेशन आदमियों को और औरतों को दोनों को ही देना चाहिए। अभी हम लोगों ने क्या इसके लिए शुरू किया है, जो कैंप्स लगाते हैं, ऐसी मशीनें आ गई हैं छोटी छोटी जो कैंप्स में जा सकती हैं, और हमें काल्पोस्कोप जैसे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। हमने जैसे आपको हम ओपीडी में देखते हैं वैसे ही हम उस पे एसिटिक एसिड यानी सिरके को लगा करके देख लेते हैं, और जहां जहां सफेद हो रहा है वहां से टुकड़ा ले लेते हैं और साथ में उसको वहीं पर जला भी देते हैं। तो इसको हम सी एंड ट्रीट ट्रीटमेंट कहते हैं। ये जो टेस्ट हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है, अगर आप देखिए इसको, बहुत ही सिंपल सा है। और इसमें जो है आप आ, बच्चेदानी के मुंह से हम ऐसे ब्रश से ले लेते हैं। तो इसमें जो प्री कैंसर कंडीशन यानी डिस्प्लेजिया है उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं और फॉलो अप रखते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर जेंट्स और लेडीज दोनों में हो सकता है। इनमें पॉलिप की तरह ग्रोथ होती है और इन पॉलिप को हटाना ही इसका सबसे बड़ा प्रिवेंशन माना जाता है। तो इसको हम कैसे करते हैं, एक तो सबसे पहली चीज है आपके लैट्रिन के अंदर ब्लड को देखना, और उस ब्लड का
DNA FIT टेस्ट किया जाता है। अगर कोई डाउट आता है तो अंदर से नीचे लैट्रिन के रास्ते से जा करके आपके सिग्मोइड में एक दूरबीन डाल करके उसको देखा जाता है। कोलोनोग्राफी भी की जा सकती है और कोलोनोस्कोपी हर 10 साल पे करानी चाहिए, खास करके अगर आपकी फैमिली में किसी भी किस्म की हिस्ट्री है। तो ये 3 टेस्ट कल करके आते हैं। एक फीकल यानी लैट्रिन की जांच जिसमें ब्लड नहीं दिख रहा है लेकिन ब्लड के लिए, फ्लेक्सिबल सिग्माइडोस्कोपी, एंड दूसरी चीज होती है कोलोन यानी ऊपर का जो बड़ी आंत जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उस बड़ी आंत में ट्यूब डाल के देखना। अब इसको प्रिवेंशन कैसे करते हैं? एक तो रेगुलर स्क्रीनिंग, एक्सरसाइज एंड हेल्दी वेट मेंटेनेंस। तो देखिए फिर वही आ गया ना, इसीलिए तो सबसे पहले हमने आपको बोला स्टेइंग हेल्दी की अगर हम बात करते हैं तो बिना न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के तो हो नहीं सकता है। न्यूट्रिशन ठीक रखिए, एक्सरसाइज अपनी करते रहिए, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। तो डाइट में जो है आपको फैट का मात्रा कम रखना है, एनिमल फैट कम रखना है, यानी वेगान डाइट ज्यादा खाइए, वेल बैलेंस डाइट खाइए, फ्रूट्स वेजिटेबल खाइए, खाली मीट या खाली पोटैटो ही ना खाते रह जाएं। और अगर स्मोकिंग भी बड़ा असर करती है जी, कैंसर सर्विक्स करती है, कैंसर ब्रेस्ट करती है, कोलोरेक्टल कैंसर करती है, लंग कैंसर तो खैर करती है, वो आपको मालूम ही है। तो लो डोज एस्पिरिन का ये पाया गया है, ये भी एक बड़ी वंडरफुल चीज है। लो डोज एस्पिरिन, बच्चा गिर रहा है तो खा लो जी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो खा लो, आपको डायबिटिक प्री डायबिटिक हो तो खा लो। तो ये एक ढंग की वंडर ड्रग है जो कि पॉलिप के भी डेवलपमेंट को रोकती है। साथ में कैल्शियम भी इसकी पॉलिप के ग्रोथ रेट को रोकता है। अब ये मत पूछिएगा कैसे, या हमें नहीं मालूम है। तो प्रिवेंटिंग लंग कैंसर, अभी तो इतना पोल्यूशन हो चुका है दिल्ली में कि ये बात ही करना बड़ा मुश्किल है गया कि सिगरेट से होता है। लेकिन फिर भी आपके हाथ में सिगरेट से बचना है तो सिगरेट से बच लीजिए। औरतों के लिए तो इतना जरूरी है कि अगर आपने सिगरेट यंग एज में पी भी है तो प्लीज मेनोपॉज ट्रांजिशन में आते आते अपनी सिगरेट छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जेंट्स के मुकाबले 16 टाइम आपके लिए खतरनाक है। वुमेन को होने वाला लंग कैंसर जेंट्स के लंग कैंसर से बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है। ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की भी बढ़ा देता है। स्क्रीनिंग के लिए लो डोज कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको हम सिटी स्कैन कहते हैं 50 से 80 साल में होनी बहुत जरूरी है। और उनके लिए एज कम हो जाती है अगर उन्होंने 20 से ज्यादा सिगरेट पी हुई है या 15 साल से ज्यादा सिगरेट पीते चले आ रहे हैं। चेस्ट एक्सरे आप करा सकते हैं लेकिन हर एक का कराने का कोई मतलब नहीं है। अब हम आते हैं यूट्रस के कैंसर पे, जो कि अब अगेन बहुत बढ़ रहा है, जिसमें डायबिटीज और मोटापा एक बहुत बड़ा रीजन है। साथ में ये फैमिली में भी रन करता है। इसमें खास करके आजकल PCOD, जिसे हम पीकॉस, ये पता नहीं किन किन नामों से बुलाते हैं, ये हमारी और लड़कियों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये भी एक प्री डायबिटिक कंडीशन होती है। तो आप ये सोचिए कि आपका अगर आपको पीकॉड है तो आप एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए एक हाई रिस्क कैटेगरी की लेडी हैं। तो इसमें क्या है कि आपकी बच्चेदानी की झिल्ली मोटी हो जाती है, धीरे धीरे चेंज होने लगती है, उसके सेल्स जब ज़्यादा चेंज हो जाते हैं तो एबनॉर्मल हो जाते हैं, और एबनॉर्मल होने के बाद वो कैंसर की तरफ भी बढ़ सकते हैं। पोस्ट मीनोपॉजल ईस्ट्रोजन थेरेपी अगर आपने ली है, आपका यूट्रस है और साथ में प्रोजेस्टेरॉन नहीं लिया है, तो वो भी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया करेगा। इसलिए अपने मन से दवाई ना खाएं, दवाई जो है डॉक्टर के सुपरविजन में ही हार्मोन्स खाएं। OTC के हार्मोन्स बहुत परेशानी में डाल देते हैं। ओबेसिटी जैसे मैंने बताया, मोटापा और डायबिटीज एक डेडली कॉम्बिनेशन है और उसमें यूट्रस के कैंसर होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। लिंच सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें परिवार में कैंसर की हिस्ट्री मिलती है, और कोलोरेक्टल कैंसर भी इसका, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब, प्रोस्टेट कैंसर, ये सब इसका पार्ट होता है। साथ में फर्स्ट डिग्री एंडोमेट्रियल कैंसर अगर हुआ है तो आपको बहुत ज्यादा
अगर आपकी माँ को या बहन को है तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की बात है। इसके लिए जो बेस्ट चीज़ है, हम लोग इंटरनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, और कोई भी डाउट होने पे उसमें से बड़ी सिंपल तरीका है, ओपीडी में भी इसकी सैंपलिंग कर सकते हैं और उसको टेस्ट के लिए भेज देते हैं। तो अगर आपको कोई भी ब्लीडिंग मीनोपॉज खत्म होने के बाद हो रही है ना, तो प्लीज इसको मत सोचिए कि यूं ही हो गई होगी, या मीनोपॉज ट्रांजिशन में बहुत हैवी इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है। एक बार डॉक्टर के पास जाइए, समझिए, जरूरत है तो अपनी जांच भी कराइए। ओवेरियन कैंसर यानी ओवरी का कैंसर फिफ्थ लीडिंग कैंसर है, और ये भी, इसकी कोई भी स्क्रीनिंग नहीं है, लेकिन हम लोग कहते हैं रेगुलरली अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते रहोगे, ओवरी में कोई सिस्ट है तो उसको इवेलुएट कराओ, पकड़ा जा सकता है। वल्वल कैंसर के लिए यही कहना है, अगर आपके वल्वा के ऊपर लगातार इचिंग चल रही है, कलर चेंज होता चला जा रहा है, कोई दाना देख रहे हैं, कोई घाव देख रहे हैं, तो उसको नेग्लेक्ट मत करें और उसको तुरंत दिखाएं, क्योंकि वो वल्वल कैंसर की पहली निशानी हो सकती है। डेंटल एग्जामिनेशन, मैंने आपको बताया, ओरल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। साल में एटलीस्ट एक बार डेंटिस्ट के पास जाइए और उनको दिखाइए। आंखें भी उम्र के साथ जानी शुरू हो जाती हैं। जितने जल्दी आप चश्मा लगाएंगे उतनी आपको प्रॉब्लम कम होगी। और अगर आपको कोई ग्लोकोमा वगैरह है तो ज़्यादा तौर पे आपको ज़्यादा बार जांच जाननी पड़ती है, और साल में एक बार अपना रेटिना का भी जांच, खास करके डायबिटिक्स को कराना बहुत जरूरी है। डायबिटीज स्क्रीनिंग मैंने आपको डिटेल में पहले ही बता दी है। एक HbA1c का टेस्ट जो हर 3 महीने पे होता है, तो बड़ा सिंपल है भाई, सब लोग करा लो। लेकिन अगर थोड़ा भी कोई डाउट है तो एक कभी कभी शुगर का टेस्ट खाली पेट और शुगर खा के भी कराना पड़ता है। खास करके अगर फैमिली में डायबिटीज रन कर रही है तो 35 साल के बाद एक बार जरूर अपने आप को, या आप ओवरवेट हैं, आपको खाने का बड़ा शौक है, लड्डू बहुत खाते हैं, तो जरूर अपना ये टेस्ट करा करके अपने हेल्थ का ध्यान रखें। जब हम कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग पे आते हैं, तो 45 साल के बाद हर हिस्ट्री को, बेशक आपकी कोई हिस्ट्री है या नहीं है, आप कॉरोनरी हार्टरी डिजीज के लिए प्रोन होना शुरू करती हैं। और मीनोपॉज के बाद जो कॉर्नरी हार्टरी डिजीज या हार्ट की प्रॉब्लम है, या हार्ट की बीमारी, या हार्ट का ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसे कहते हैं, इनके चांसेस लेडीज में जेंट्स के मुकाबले में ज़्यादा, पहले तो बराबरी पे आते हैं और फिर ज़्यादा हो जाते हैं। और यही नहीं, ये भी पाया गया है कार्डियक रप्चर, मसल्स का फटना, औरतों में, मीनोपॉजल वुमन में जेंट्स के कंपैरिजन में कहीं 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 ज़्यादा होता है। तो हर 5 साल में अगर नॉर्मल है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल हर 5 साल में कराएं, नॉर्मल नहीं है तो हर साल में कराएं। लाइफस्टाइल चेंज रखें, और क्योंकि आपका किडनी डिजीज, लीवर डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम सबसे एसोसिएटेड होता है। ऑस्टियोपोरोसिस तो मैंने आपको बताया, ये साइलेंट किलर है, फ्रैक्चर हो सकता है, मालूम भी नहीं पड़ेगा, और हड्डियां टूट करके आपकी रह जाएंगी। तो इसमें अगर एक ही चीज है, अगर आप थोड़े से मोटे हो ना, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस का नुकसान पतली दुबली लड़कियों के मुकाबले में कम होगा। लेकिन स्मोकिंग, हैवी अल्कोहलिज्म, फ्रैक्चर, ये सारी चीजें, स्पेसिफिकली फैमिली हिस्ट्री जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्किन एग्जामिनेशन में अगर हम आते हैं तो इसमें हम स्किन कैंसर की भी बात करते हैं, खास करके अगर किसी क्लोज रिलेटिव का हुआ है। वीकेंड इम्यून सिस्टम होता है, आप तो सोचते हो आपके नाक के ऊपर एक ब्यूटी स्पॉट आ गया है, लेकिन कई बार ये ब्यूटी स्पॉट स्किन का कैंसर, मेलेनोमा भी हो सकता है। खास करके अगर उसमें इचिंग है, साइज बढ़ रहा है, रेडनेस है, या कोई बाल निकल रहा है, तो इमीडिएटली एक डर्मेटोलॉजिस्ट को आप कांटेक्ट करें और ये देखें कि आपका जो निकलता हुआ ब्यूटी स्पॉट है, या आपके पास पहले से ही एक आध ब्यूटी स्पॉट बने हुए हैं, उनमें इचिंग शुरू हो गई, या बाल निकल आए, या साइज बढ़ गई, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। इन्फेक्शन डिजीज स्क्रीनिंग में जो टॉप पे आता है, हेपेटाइटिस सी आता है। हर एक को अपना हेपेटाइटिस सी टेस्ट कराते रहना चाहिए। ये मत भूलिए कि आपकी उम्र 50 के ऊपर होगी तो आपको HIV नहीं हो सकता है, ऐसा मत सोचिए, और HIV भी टेस्ट करा दिया कीजिए। इसके अलावा आपका लाइफस्टाइल कैसा है,
इस पे बड़ा मैटर करेगा कि आपको अपना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के टेस्ट लाइक सिफिलिस, क्लेमाइडिया और इन सब का कराना है या नहीं कराना है। अभी आजकल बहुत ही अच्छे एसटीडी पैनल्स आ गए हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर आपको अपने हाथ से देखेगा और आपसे बातें करेगा और आपको ये बताएगा कि भैया आपको क्या करना चाहिए अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए। हमारी तो टिप यही है, सबसे पहले खुश रहना सीखिए। नंबर 2 पे अपनी जिंदगी को जीना सीखिए। नंबर 3 पे अपनी कुछ हॉबीज को जीना सीखिए, फिर से रिवाइव करिए। अपने फ्रेंड्स बनाइए, उनके बीच में उठ के बैठिए और साथ में अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप करा करके अपने फिक्सिंग कराइए। साथ में अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। डिप्रेशन और एंजाइटी इज कंसीडर्ड द सिनोनिम टू द मेनोपॉज। क्यों? क्योंकि हमारी सोच ऐसी है और कुछ सुन सुन के कि जैसे मेनोपॉज होगा तो मेंटल फॉग होगा, वो कहानियां बनती चली जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने दिमाग को एक्टिव रखेंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे, मेडिटेशन एक्सरसाइज करेंगे, अल्कोहल टोबैको का यूज बंद करेंगे, तो आपको धीरे धीरे इन सब चीजों की प्रॉब्लम खत्म होती चली जाएगी। समय से दवाइयाँ लीजिए, लेकिन थैला भर के दवाई खाने के पहले जरूर सोचिए कि कहीं 2 दवाइयाँ एक दूसरे के साथ खानी है या नहीं खानी है। तो वो डब्बा अगली बार जब डॉक्टर साहब के पास अपने आप जाएं, उसको लेके जाएं कि ये नीली पीली हरी सफेद सब एक साथ खा लूं या ना खा लूं। इम्यूनाइजेशन बहुत जरूरी है। हम बात नहीं करते हैं, बच्चों को तो इतने इतने इम्यूनाइजेशन लगाते हैं, लेकिन बड़ों के लिए बात नहीं करते हैं। इस पे हमें एडल्ट वैक्सीनेशन पे ध्यान देना है। मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया था कि जो हमारा ये रेस्पिरेटरी वायरस का इन्फेक्शन है, वैक्सीनेशन है, ये अगर हम टाइमली लगा लें तो हमारा आईसीयू का बिल जाने पे बहुत कम हो जाएगा, या हमें आईसीयू तक जाना ही नहीं पड़ेगा। फ्लू शॉट हर साल लगाना चाहिए। कोविड-19 वैक्सीन तो लगवा ही चुके हैं। टी डैप वैक्सीन जरूरी है कि आप 10 साल में एक बार लगा लें। वेरिसेला वैक्सीन जो कि चिकन पॉक्स की वैक्सीन है, एडल्ट वैक्सीन चिकन पॉक्स बहुत बुरा होता है। साथ में हर्पीस जोस्टर की नई वैक्सीन आई है, ये भी एक रिकमेंडेड वैक्सीन है। और हेपेटाइटिस बी हम लोग जानते ही हैं। एक चीज मैं आज आपको बताऊंगी जो कि हम लोग कम बात करते हैं। हड्डियों की बात बहुत करते हैं, मसल्स की बात नहीं करते हैं। बड़ी उम्र में जिस ढंग से हड्डियां कमजोर होती हैं, उसी ढंग से मसल्स भी कमजोर होती हैं। धीरे धीरे हमारी मसल्स जो है टाइप 1 से टाइप 2 में चेंज हो जाती हैं और उनके काम करने का स्टाइल चेंज हो जाता है। वो थोड़ी थोड़ी जो है वीक होती चली जाती हैं। उठना बैठना मुश्किल हो जाता है आपको। उठने में थोड़ा समय लगता है, कुर्सी पकड़ के आप उठते हो। जो जो चीजें आराम से खोल लेते थे, अब खुलती नहीं है, चीजें हाथ से गिर जाती हैं। हालांकि ये नॉर्मल एजिंग है, लेकिन कई बार अगर आप हेल्दी नहीं है, अपने आप को नहीं संभाला हुआ, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये ज्यादा प्रोग्रेस कर जाती हैं और आप जल्दी ही सार्कोपीनिया यानी मसल्स की कमजोरी के शिकार बन जाते हैं। इसको हम कैसे देखते हैं कि आपका हैंड ग्रिप का स्ट्रेंथ कैसा है, आप कैसे चल रहे हो। तो इनको देख करके हम इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि आपका क्या फिजिकल परफॉर्मेंस है और आप कितना ज्यादा सार्कोपीनिया से ग्रसित हैं या नहीं। तो एक्सरसाइज 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 सबसे जरूरी चीज है। डाइट देखिए, इस उम्र में ज्यादा मत खाइए। 1400 किलो कैलोरी बहुत होती है। और प्रोटीन खाना है। कैसे खाना है ये तो आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है। 1.2 kg पर बॉडी वेट इम्पॉसिबल, लेकिन सोचिए और खाइए। 20 ग्राम सर्विंग ऑफ एनिमल और प्लांट प्रोटीन इज इनफ। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप रोज ही चिकन खाइए, दाल पनीर से भी काम चल सकता है। लेकिन रिक्वायरमेंट में आपको एनिमल प्रोटीन थोड़ा सा चाहिए होता है, इसलिए आपके लिए ये दूध दही भी चाहिए होता है। ऑस्टियोपोरोसिस मैंने आपको बता ही दिया है।
कि इसके लिए हम टेस्ट कर सकते हैं जिसको डेक्सा स्कैन करते हैं, ये भी हमारे पार्ट है फिजिकल हेल्थ का। विटामिन डी इसको प्रिवेंट करता है। सो एंड में मैं आपको ये बताना चाहूंगी, मेरी लास्ट स्लाइड है, कि जब हम मिड लाइफ हेल्थ इवेल्युएशन के लिए सोचते हैं तो हम एक ऐसे डॉक्टर के पास जिसका पैशन है मिड लाइफ हेल्थ, वहां जाएं। आराम से एक काउंसलिंग में हमें पहले वो हमारी हिस्ट्री पूछेगा, फिर हमें पूरा देखेगा, एग्जामिन करेगा, दुनिया भर की लैब टेस्ट जो मैंने आपको बताया, आपके एनीमिया के लिए सीबीसी, थायराइड के लिए टीएसएच, शुगर के लिए HbA1c, FBS, PPBS, आपकी किडनी के लिए सीरम क्रिएटिनिन, आपके लीवर के लिए LFT, आपके यूट्रस के लिए अल्ट्रासाउंड, और आपके लीवर के लिए जो है होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड, यूट्रस के माउथ के लिए पैप स्मीयर, ब्रेस्ट के लिए मैमोग्राफी एंड ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड। तो ये सारे के सारे टेस्ट जो हैं वो आपको कराने बहुत जरूरी हैं, और उनको टाइमली कराते कराते रहिए। तो ये जो इमेजिंग वर्ड है, इसका मतलब यही आपके अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह होते हैं। साथ में एक लास्ट चीज है कि अगर आपको कोई स्पेशल प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो हम उसको बात करते हैं। Thank you, Dr. Ragini. There is one question in the chat box. आप लोगों को और कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वी एनकरेज यू, प्लीज इंटरेक्ट विद द एक्सपर्ट। आज मौका है, बात करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। मैम, एक Q&A बॉक्स में क्वेश्चन है। जी, they are talking about mammography, which is really painful. So can you suggest if it is mandatory for women above 50, or alternate test in which it can be, found doubtful, then mammography can be prescribed? देखिए, मैमोग्राफी का कोई सब्स्टिट्यूट अभी तक नहीं आया, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। इवन बड़ी उम्र में अकेले अल्ट्रासाउंड से भी नहीं होता है, अल्ट्रासाउंड के साथ मैमोग्राफी सप्लीमेंट की जाती है। लेकिन कुछ गाइडलाइन चेंज हो गई है, अब हम हर साल मैमोग्राफी नहीं करते हैं। अगर आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, आपका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल चल रहा है, तो आप 2 से 4 साल में करा सकते हैं। जहाँ तक पेन का सवाल रहा, जो लेटेस्ट डिजिटल मशीन्स आ गई हैं, थोड़ा तो दर्द होता है लेकिन इतना भी दर्द नहीं होता। और अगर आपको मेंसेस आ रहे हैं तो आप मेंसेस के चौथे पांचवें दिन जाइए, जब थोड़ा सा वहाँ टेंडरनेस खत्म हो जाती है। प्री मेंस्ट्रुअल टेंडरनेस बहुत आती है, लेकिन ऐसा है कि देखिए, ये जरूरी टेस्ट है। अगर इस चीज के लिए आप दिमाग बना लेंगे तो आपको दर्द भी कम होगा। कोई इसका अल्टरनेटिव अभी तो मार्केट में आया नहीं। There is one question by Poonam. She says, is milk with protein supplement good for thyroid with PCOS issues? देखिए, ऐसा है ना, किसी भी चीज के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। थायराइड का तो कोई रिश्ता ही नहीं है इससे, प्रोटीन और दूध से। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए आपको यूजुअली थायराइड मेडिसिन लेनी ही पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये पाया गया ये एंजाइमेटिक डिफेक्ट्स हैं। हाँ, ये है कुछ किस्म के फूड इसके लिए कॉम्पीट करते हैं, जैसे आपकी पूरी गोभी फैमिली है तो उसको नहीं, अवॉइड करना चाहिए। लेकिन दूध से थायराइड का कोई रिश्ता नहीं है, ना कि आप पे और भी किसी ब्लड टेस्ट का थायराइड से कोई रिश्ता। Any more questions? और किसी ने क्वेश्चन पूछना हो तो एक बार और याद करा दें, फॉर दिस फ्री बुक दैट वी विल बी सेंडिंग ओवर इन जनवरी एज अ न्यू ईयर जेस्चर। आप लोग अपना, जो भी इंटरेस्टेड हैं, ये इंग्लिश में है बुक, अगर कोई इंटरेस्टेड है लेने में तो अपना फोन नंबर, एड्रेस विद पिन कोड डाल दें। चैट बॉक्स में अभी डाल सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर दिया था पीछे। द सेम रिकॉर्डिंग इज गोइंग टू बी अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। आप वेबसाइट पे जाके नंबर लेके फिर दोबारा से हमको बाद में व्हाट्सएप कर सकते हैं।
There's some more questions coming, मैम. एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं. Can you please suggest good protein for perimenopausal period if possible? Poonam. Dr. Baljeet Kaur, excellent presentation, ma'am. Entire program is fantastic. मैम कोई प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं पेरीमेनोपॉजल पीरियड के लिए. देखिए, जो पेरीमेनोपॉजल पीरियड है तो आपको कैसे ध्यान रखना है अपने प्रोटीन का. आप मिनिमम 1 ग्राम प्रोटीन अपने वेट के हिसाब से चलिए. एक लेडी का वजन यूजुअली 60 से 62 किलो, मैक्स 65 किलो, एक एवरेज हाइट के 5 फीट 4 इंच 5 इंच पे होना चाहिए. ये भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ, लेकिन तब भी इससे कम होता नहीं है, तो फिर एक दिक्कत आ जाती है. 65 ग्राम प्रोटीन आपका सीधे हो गया. तब ये 65 ग्राम प्रोटीन कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, सोर्स हमने आपको बता दिए, वो उससे थोड़ा बहुत पूरा हो जाएगा. इस ढंग से आप इसको कंटिन्यू करें. So if there are no more questions, डॉक्टर गुंजन गोयल ने भी थैंक यू मैसेज डाला है. सच अ नाइस डिलीवरी ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सच अ सिंपल वे. थैंक यू सो मच. So these programs are really informative. Please do encourage your friends also to join. डॉक्टर रागिनी अग्रवाल ने बहुत अच्छे अच्छे पहले भी लिए हैं टॉपिक्स. आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं वेबसाइट पर जाकर mysaki.in. So I'll just take you through our women's एक health क्वेश्चन मैं website. देख रही हूँ, ये क्वेश्चन किसी ने डाला है. एक How और है. to determine whether hysterectomy is required or lifestyle management will resolve? I am 52. तो देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, हर मीनोपॉज ट्रांजिशन में हर हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए हिस्टेरेक्टमी नहीं आंसर है. लेकिन कई बार अगर वो किसी बड़ी बीमारी की द्योतक है, खास करके 52 साल की उम्र के बाद भी आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, मेंसेस चली जा रही है, आपके एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हुआ जा रहा है, तो आपको वो लाइफस्टाइल इंटरवेंशन से नहीं ठीक हो पाएगा. तो ये इसका डिसीजन इस ढंग से नहीं लिया जा सकता है. आपको कंप्लीट इवेल्युएशन की जरूरत है, अल्ट्रासाउंड की जरूरत है. अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है तो बायोप्सी की जरूरत है. अगर बायोप्सी आपकी सिंपल हाइपरप्लेजिया बता रही है तो हम उसमें हार्मोन्स ट्रीटमेंट दे सकते हैं. एक मायरना करके एक कॉपर टी जैसी चीज आती है, उसको हम यूट्रस में डाल देते हैं. और अगर उसमें सिस्टिक हाइपरप्लेजिया, एटिपिकल हाइपरप्लेजिया यानी कि प्री कैंसरस कंडीशंस दिख रही हैं, तो आई थिंक एट दिस एज ऑफ द 52 hysterectomy is much better option. Although I'm a proponent for the save uterus, राइट एंड लेफ्ट यूट्रस कभी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि उसका औरत के शरीर पे बहुत सारे असर होते हैं. लेकिन वो बातें एक यंग औरत के लिए 42-45 साल में तो समझ में आती है, लेकिन 52 साल के बाद ये आपके यूट्रस जाने का, सूखने का समय है. अगर बढ़ता हुआ यूट्रस है, ब्लीड करता हुआ यूट्रस है, उसको सीरियसली लीजिए और उसको इवेलुएट कराइए. अगर जरूरत है तो इस उम्र में हिस्टेक्टमी करने से आपको कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी. फाइब्रॉयड, जहां तक है, हम फाइब्रॉयड को कभी भी ऑपरेट नहीं करते हैं, कभी भी, अनटिल अनलेस ये आपको कोई सिम्टम देता है. सिम्टम का क्या मतलब होता है? या तो इसका साइज बढ़ता चला जा रहा है, या आपके बॉडी पे वो प्रेशर कर रहा है, लैट्रिन बाथरूम करने में दिक्कत आ रही है, या फिर आपको ब्लीडिंग करा रखता है. एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉयड, खास करके छोटा फाइब्रॉयड जो कि अल्ट्रासाउंड में बाय द वे दिख गया, उसकी किसी इलाज की आवश्यकता नहीं है. साल में एक बार अल्ट्रासाउंड कराते रहिए और मस्त रहिए. ठीक है दीपिका जी, आई थिंक आज के लिए काफी है. हाँ, आज के लिए बहुत टाइम हमने ले लिया मैम आपका. आप सबको बहुत बहुत न्यू ईयर की शुभकामनाएं. अगले साल फिर मिलेंगे. और थैंक यू सो मच मैम. हम अपने ऑडियंस को एक बार ही जल्दी से ले चलते हैं mysakhi.in, जो कि जैक्सन पाल का CSR इनिशिएटिव है. दिस जैक्सन पाल फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, एज यू ऑल नो, वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन women's health. We are committed to improving the women's health across all life stages from adolescence to menopause. Among our CSR initiatives, we have been promoting women's health and hygiene
by building sanitation facilities in girls' schools, also having awareness programs on menstrual hygiene, with the aim of promoting public awareness, spreading awareness about women's health. ये website बनाई गई है mysakhi.in. This will provide you educational content along with public awareness programs जिनकी recording आपको मिलेगी on our website. You can go and revisit these programs again and again. So we look forward to your active participation, and please note our next webinar will be on Friday, 17th January. Another important issue which is very common, that is gastric issues like constipation, acidity, gas. In सब के लिए Dr. Ragini Agarwal has arranged for us to interact with the gastrointestinal specialist Dr. Pawan Rawal. So हम आर्टिमिस गुड़गांव से हैं डॉक्टर साहब HOD, तो हम उनसे बातचीत करेंगे मैडम के जरिए. एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर अरेंजिंग सच गुड टॉपिक्स फॉर ऑल ऑफ अस. जाते जाते दीपिका जी, आखिरी क्वेश्चन है. एक हमारी बहुत ही लॉयल कहना चाहिए कि अटेंडीज की, मैडम उषा जी की किडनी की सिस्ट जो होती है, जो बाय द वे अल्ट्रासाउंड में आ जाती है, उसका कोई लेना देना नहीं है. वो यूजुअली कंजेनाइटल होती है, और अगर उसने आज तक आपको कोई तकलीफ नहीं दी है तो आगे भी कोई तकलीफ नहीं देगी. राइट. थैंक यू वेरी मच, एंड वी से गुड बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन.